Hello student, welcome to the next lecture of surface chemistry. In this lecture, we are going to discuss about colloids, or more precisely colloidal dispersion. Now, the story starts with mixture. Now, what is mixture? Mixture is basically two or more components added together. So when two or more components added together, either they will make a homogeneous mixture or they will make a heterogeneous mixture. Now, what is the meaning of homogeneous mixture? Where the particles, when they are added together, they will form one phase system, one phase, either throughout the system. It will be solid, or it will be liquid, or it will be gas. Heterogeneous mixture is that when you mix two or more substance, they will form two-phase system. Okay, two-phase system. You will see solid liquid, you will see liquid gas. ऐसा two-phase system बनाएगा. So that will be a heterogeneous mixture. Homogeneous mixtures are called as true solutions. Heterogeneous mixture दो टाइप के होते हैं. एक होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलॉइड्स और कोलॉइडल डिस्पर्शन. तो अब ये तीनों के बारे में बराबर थोड़ा सा स्टडी करते हैं. व्हाट इज ट्रू सोल्यूशन? ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, वन फेज. फॉर एग्जांपल NaCl in water. So you take 100 grams of water, which is in large amount, and you add 2 grams of NaCl in small amount. You mix it, stir it. NaCl get dissolved to form. It dissociates more precisely to give Na plus and Cl minus ions. Na plus and Cl minus ions you cannot see by naked eye, not even under microscope. And when you see this solution properly, a true solution, because it is a one phase system, you see the solution properly, it will be transparent, it will be clear, it will be one phase, that is a liquid phase. You pass this solution to a filter paper, to water as well as Na plus as well as Cl minus. It will pass through a filter paper, it will pass through a membrane, to this animal membrane. To this solution, if you pass a light, the light won't be scattered by the particles, because particles are too small to scatter the light. That is why you can't see the path of light inside. And here the size of the particle is less than 1 nanometer. 1 nanometer means 10 raised to minus 9 मीटर से भी छोटा पार्टिकल होता है. और ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी बॉटम पे नहीं बैठेंगे. मतलब Na plus and Cl minus will never settle down. They will keep on moving inside. After hydration, they will move inside. They won't settle down. So that is true solution. So true solution are homogeneous mixture where the particle size is less than 1 nanometer, where a particle doesn't settle down in the bottom. They are continuously random motion. The particle can pass through filter paper as well as through animal membrane. They do not scattered light. मतलब you cannot see a path of light. मतलब जो intensity की light solution में जाएगी वो intensity की light ही वहां से निकलेगी. For example, NaCl in water, sugar in water. So it is true solution. Okay. 1 nanometer से भी छोटा साइज, वन फेज. अब हेट्रोजेनस में ना दो होते हैं. हेट्रोजेनस में एक ऐसा मिक्सचर सिस्टम होता है जिसमें पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है. ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक सैंड एंड एड टू अ बीकर कंटेनिंग वाटर, जैसे आप सैंड डालोगे, सैंड जाके बॉटम पे बैठ जाएगा. तो यू विल सी वाटर and sand at the bottom. So you see two phase, so मतलब heterogeneous, और यहाँ पर sand bottom पे बैठ गया है. तो this system is called as suspension, जिसमें particle size 1000 nanometer से ज्यादा होते हैं. It can be either visible by a naked eye, या तो नहीं भी दिख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप में जरूर दिखेंगे ये पार्टिकल्स, बिकॉज पार्टिकल साइज इज लिटिल बिट ग्रेटर, ज्यादा है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है. ये लाइट स्कैटर्ड नहीं कर सकते, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते, ये मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते. So these are called as suspension, a heterogeneous mixture. Now true solution में जो पार्टिकल होते हैं is less than 1 nanometer. सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं is greater than 1000 nanometer. Now इनके बीच का जो पार्टिकल साइज होता है 1 nanometer से 1000 nanometer के जो बीच का साइज होता है, which makes a heterogeneous system, that are called as colloids or colloidal dispersion. For example, milk, starch in water, शुगर केन जूस, ये शेविंग क्रीम, जैम, जेलीज, बटर, प्यूमाई स्टोन, ठीक है, जेम स्टोन्स जिसमें हम लोग फिंगर में रिंग में पहनते हैं, ऑल दीज आर नथिंग बट कोलॉइड्स. तो कोलॉइड्स आर हेट्रोजेनस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल. So you cannot see a clear solution out of it. It's a heterogeneous system. Second, particle size is between 1 to 1000 nanometer. Third, they can pass, this particle can pass to filter paper, but not to animal membrane. This particle size is little bit bigger than
ट्रू सोल्यूशन बट लेसर देन सस्पेंशन, देयरफॉर दे कैन स्कैटर्ड लाइट, तो ये लाइट स्कैटर्ड कर सकते हैं, जिसके वजह से यू कैन सी अ पाथ ऑफ लाइट। मतलब अगर मैंने ट्रू सोल्यूशन बीकर में लिया, लाइट पास किया है, तो उसके अंदर से उसका पाथ ऑफ लाइट दिखाई देगा मुझे। तो यू कैन सी इट इन अ डे टू डे लाइफ, बिकॉज हमारा पूरा एटमॉस्फेयर कोलॉइड से सराउंडेड है। अब रात में हेडलाइट से पाथ ऑफ लाइट दिखता है, एरोप्लेन जा रहा है पाथ ऑफ लाइट दिखाई देता है, थिएटर में प्रोजेक्टर से पाथ ऑफ लाइट दिखाई देता है। इन द मॉर्निंग व्हेन द सन रेज कम थ्रू द विंडो, यू सी द पाथ ऑफ लाइट, यू टेक अ टॉर्च, ओके, इन द नाइट टाइम यू स्विच इट ऑन, यू सी अ पाथ ऑफ लाइट। तो वो पाथ ऑफ लाइट क्यों दिख रहा है? बिकॉज जो लाइट है वो कोलॉइडल पार्टिकल से कांटेक्ट में आके स्कैटर्ड हो जाती है। बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट यू सी अ पाथ ऑफ लाइट। सो व्हेन यू सी अ पाथ ऑफ लाइट, दे आर नथिंग बट द कोलॉइड्स। प्लस कोलॉइड्स जो होते हैं वो बॉटम पे नहीं बैठते, वो ट्रू सोल्यूशन की तरह घूमते रहते हैं, लेकिन सस्पेंशन की तरह हेटेरोजेनस भी है। मतलब कोलॉइड्स के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, एक ट्रू सोल्यूशन के जैसा भी है उनके पास, where the particle doesn't settle down, it keep in moving inside randomly, that is called as Brownian movement। तो वो उनके पास होता है, और वो बॉटम में सेटल नहीं होते, लेकिन वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है। सो कोलॉइड्स आर बिटवीन सस्पेंशन एंड ट्रू सोल्यूशन। सो कोलॉइडल डिस्पर्शन इज बिटवीन सस्पेंशन एंड ट्रू सोल्यूशंस। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा कोलॉइडल डिस्पर्शन के बारे में फोकस करेंगे। नाउ इन ट्रू सोल्यूशन यू हैव टू टर्म्स, solute and solvent. Solvent which is present in large amount, solute which is present in small amount. In colloidal dispersion, you have two, again, two parts, disperse phase and dispersion medium. Now, this is solute for true solution and solvent. Solvent which is present in large amount, solute which is present in small amount. For example, NaCl 2 gram, water 100 gram. तो water आपका solvent हो गया और NaCl आपका solute हो गया। Similarly, colloidal dispersion में भी दो फॉर्म है, disperse phase and dispersion medium. Disperse phase is like solute, dispersion medium is like solvent। ऐसा दिमाग में रखना है। ओके, तो अगर मैं डिस्पर्स फेज बोल रहा हूँ, डिस्पर्शन मीडियम बोल रहा हूँ, तो डिस्पर्स फेज इज लाइक सल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट। लाइक ट्रू सोल्यूशन वी हैव सल्यूट सॉल्वेंट, कोलोइडल डिस्पर्शन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज इज इन स्मॉल अमाउंट, डिस्पर्शन मीडियम इज इन लार्ज अमाउंट। बट ये दोनों को मिक्स करोगे तो हेटेरोजेनस मिक्सचर मिलेगा, सल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो होमोजेनस मिक्सचर मिलेगा। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स सी सम मोर points regarding the colloids. So we can write down, okay, basically if you talk about colloids, or colloidal dispersion. So colloidal dispersion are those, first of all, it's a heterogeneous mixture where particle size is between 1 nanometer to 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से कम साइज था ट्रू सोल्यूशन का, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा साइज था सस्पेंशन का, दोनों के बीच का पार्टिकल है। ओके, पार्टिकल डजंट सेटल डाउन, इट सेटल डाउन ओनली अंडर सेंट्रीफ्यूज, वरना ये सेटल डाउन होते नहीं है। ओके, सो पार्टिकल डजंट सेटल डाउन इजीली। ओके, सेंट्रीफ्यूज से हो जाएंगे ये। अच्छा, इट कैन पास, पार्टिकल कैन pass through फिल्टर पेपर, उसके थ्रू पास हो सकते हैं, बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। थ्रू animal membrane. Okay, now particles are invisible even under microscope. Particles are invisible even under microscope. Okay, this particles can scatter light
okay, which actually help us to see the path of light. And इसके examples ही आपको पता है. Now the particle doesn't settle down, they are under continuous movement. This movement is called as Brownian movement, वो हम लोग बाद में देखेंगे. तो they show electrophoresis. Electrophoresis is migration of particle under electrical field, ये हम लोग देखेंगे बाद में. Brownian movement भी दिखाते हैं. Brownian movement means these particles, they do not settle down like suspension. They do not settle down, but they are similar to true solution. They keep on moving randomly. Achha, they diffuse very slowly. Diffuse slowly. Suspension तो diffuse ही नहीं होते. और true solution diffuse at a faster rate. For example, milk. अब colloidal dispersion के example बहुत सारे हो सकते हैं. Milk, starch in water, cheese, butter, jellies, ruby glass, pumice stone, sponge, rubber, hair cream, shaving cream, whipped cream, foam, beer, soap, leather, fog, mist, cloud, जो हम लोग देख रहे हैं नेचर में, smoke, dust, ये सब के सब colloids ही है. So now let us talk about different types of colloidal system. अब colloidal dispersion में दो चीज होती है. एक होता है, मैंने बताया था, one is dispersed phase, जो आपको किस तरीके से समझना है, like solute in true solution, and dispersion medium. Dispersion medium is like your solvent in true solution. Okay, so we have two things, dispersed phase and dispersion medium. So depending upon dispersed phase and dispersion medium, colloidal system 8 types के हो सकते हैं. Let us talk about different type of colloidal system. That is different types of colloidal system. Colloidal system देखते हैं. Phase, medium. So this is dispersed phase, this is dispersion medium. Okay, तो मतलब ये solvent हो गया और ये आपका क्या हो गया, solute हो गया. It's like solute. Now system का नाम क्या होगा, colloidal system का नाम क्या होगा, तो you will write the name and you will give you the examples. मतलब अगर आपने suppose liquid लिया है as a dispersed phase और उस liquid को add कर दिया in large amount of solid, जहां पर solid आपका solvent जैसा हो गया, that is dispersion medium. मतलब मैंने आपको बताया है कि dispersed phase is like solute of true solution and dispersion medium is like what, solvent, जो ज्यादा amount में होता है of the true solution. So when you add liquid to solid, it becomes a gel. उस system को हम लोग gel बोलते हैं, उस colloidal system को हम लोग gel बोलते हैं. For example, cheese, butter, jellies, ये सब के सब जेल के फॉर्म में आ गए. ओके, लिक्विड इन सॉलिड, इसमें लिक्विड स्टोर होता है बट मैक्सिमम सॉलिड होता है, इसके लिए ये सेमी सॉलिड फॉर्म्स में होते हैं. अच्छा, जेल. सेकेंड, फॉर एग्जांपल अगर आपने सॉलिड सब्सटेंस लिया और उसी को सॉलिड में ही ऐड कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल. फॉर एग्जांपल जेमस्टोन्स. इफ यू सी अ जेमस्टोन, कोई जेमस्टोन में मिक्सचर रहते हैं डिफरेंट कलर्स की, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऐसे मिक्सचर्स रहते हैं. तो बेसिकली जेमस्टोन हो गया रूबी ग्लास. ओके, गोल्ड इन ग्लास, आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स गोल्ड इन ग्लास, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिसमें गोल्ड ग्लास के डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें गोल्ड वाटर ऐड किया जाता है. So when the light falls on it, it gives a different types of glossy appearance. Okay, that is being used as a gifts. जो हम लोग गिफ्ट देते हैं लोगों को, different artifacts made up of glass. Then you have gas. अगर आपने गैस लिया है और उसको ऐड कर दिया है सॉलिड में, so that is called as solid foam.
उसको फोम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल pumice stone which is used to clean pumice stone is used to clean our feet while bathing. Then sponge जो होते हैं, rubber. बेसिकली इसमें क्या है, इसमें बेसिकली क्या है, गैस डाला गया है टू मेक इट इन सॉलिड. द गैस इज एडेड इन सॉलिड, दैट इज व्हाई दीस कंपाउंड बिकम पोरस इन नेचर. ये पोर्स हो जाते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से दे बिकम लिटिल सॉफ्ट. देन यू हैव द अनदर एज लिक्विड. सपोज आपने लिक्विड लिया है डिस्पर्स फेज और लिक्विड में ही ऐड कर दिया. So when liquid is added to liquid, that is called as emulsion. For example, milk is a emulsion. Okay, fat in water. Then cream, hair cream is a emulsion. Fifth, if you take a solid और आपने dispersion medium रखा है liquid, then it is called as only foam. For example, sorry, solid in liquid डाला, that will be called as sol. That will be called as sol. याद रखना, solid in solid is solid sol, but solid in liquid is only sol. In sol, for example, gold water, Au in water, As2S3, arsenic sulfide in water, sulfur in water, ये सब sol बना रहे हैं. Paints, तो paints में भी क्या होता है, solid is added to liquid. The complex coordinate compounds are added to liquid to form a paint. Then milk of magnesia, which is used for acidity, जो हम लोग जेलुसिल जिसको बोलते हैं, जो लिक्विड हम लोग we have that liquid, the name is जेलुसिल. So that is milk of magnesia. That is again magnesium hydroxide added to a liquid to form a colloidal dispersion. So that is not a clear solution अगर आप देखोगे तो. फिर सेल फ्लूइड, सेल में जो फ्लूइड्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड एंड ऑल, वो सब सॉलिड इन लिक्विड है. देन सिक्स्थ विल बी गैस. अब गैस को अगर आप लिक्विड में ऐड कर दोगे तो डेफिनेटली वो एक फोम ही बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल गैस इन लिक्विड को हम लोग, अच्छा गैस इन लिक्विड को फोम बोल देंगे. फॉर एग्जाम्पल whipped क्रीम, वो एग्जाम्पल हो सकता है. शेविंग क्रीम इज अ कोलॉइड्स. देन फोम, बियर, लेदर, सोप लेदर, वो भी एक कोलॉइड ही है. सोप इन वाटर इज ऑल्सो अ कोलॉइडल डिस्पर्शन. डिटर्जेंट वाटर इज कोलॉइडल डिस्पर्शन. अच्छा, तो दैट इज नथिंग बट गैस इन लिक्विड इज कॉल्ड एज फोम. ओके, देन अगर अपने लिक्विड को गैस में ऐड कर दिया, मतलब गैस लार्ज अमाउंट में, लिक्विड स्मॉल अमाउंट में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एरोजोल. फॉर एग्जाम्पल फॉग. फॉग के अंदर क्या होता है, द लिक्विड ड्रॉपलेट्स, दैट इज नथिंग बट द H2O is trapped in the atmospheric gas. Then mist, clouds भी वही है, that is a colloidal dispersion. They have a liquid in gaseous state. Then insecticide spray, ये सब के सब liquid in gas है. और eighth है solid in gas. Solid in gas is also called as aerosol or solid aerosol. For example, smoke हो गया, डस्ट, ये सब क्या है, एयर में पार्टिकल्स है छोटे. स्मोक भी क्या है, एयर में कार्बन पार्टिकल्स, हार्मफुल पार्टिकल्स, दैट इज सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन द एयर. सो दीज आर नथिंग बट डिफरेंट कोलोइडल सिस्टम. और कोई बोलेगा सर व्हाई नॉट गैस इन गैस, मतलब आप गैस इन गैस को क्यों नहीं ले रहे. मतलब इसको नहीं ले सकते आप गैस इन गैस को. रीजन बिकॉज गैस इन गैस फॉर्म्स अ homogeneous mixture and colloidal is a heterogeneous mixture, so you can have only 8 colloidal system, जिसमें हम लोग अभी आगे ज्यादा डिस्कस करेंगे सॉल को. ठीक है. अच्छा, एक चीज याद रखना कि अगर आपने डिस्पर्शन मीडियम वाटर लिया है, अगर डिस्पर्शन मीडियम सॉल में, सॉल क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, अगर डिस्पर्शन मीडियम आपने वाटर लिया है सॉल के अंदर, इफ सॉल इज नथिंग बट व्हाट, सॉलिड इन लिक्विड, वह सॉलिड आपका डिस्पर्स फेज है और लिक्विड आपका डिस्पर्शन मीडियम है. लेकिन लिक्विड को अगर आप वाटर ले लोगे, मतलब सॉलिड इन वाटर ऐड करोगे, तो सच टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज एक्वासॉल और हाइड्रोसॉल. ओके, जहां पर हम लोगों ने
सॉलिड इन लिक्विड ले, तो सॉलिड इन लिक्विड डालोगे तो वो एक क्लियर सोल्यूशन नहीं बनाना चाहिए, ओके, इट शुड बी एन हेटेरोजेनस मिक्सचर, तो वो बन जाएगा कोलोइडल डिस्पर्शन, और कोलोइडल डिस्पर्शन को सॉल्व बोलते हैं, बट अगर वाटर लिया तो दैट सॉल्व विल बी कॉल्ड एज एक्वाजोल और हाइड्रोजोल। सो नाउ लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्व्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्व्स। Okay guys, now let us now try to classify salts. Now salts are basically what? Solid in liquid. When solid is added to a liquid, it will form a heterogeneous mixture, and if that size of the particle lie between 1 nanometer to 1000 nanometer, that will be a colloidal dispersion. That colloidal dispersion is called as sol, solid in liquid. So sol is basically solid in liquid, where this is a dispersion disperse phase, and liquid here is dispersion medium. And if you remember, मैंने बताया था कि if the dispersion medium is water, that will be called as aquazole or hydrozole. Now salts can be classified in two manners. The first classification will be on the basis of interaction between disperse phase and dispersion medium, okay, between the attraction of disperse phase and dispersion medium. और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल इनसाइड, ओके, जो आपने सॉलिड पार्टिकल्स ऐड किए लिक्विड में उसके साइज के ऊपर डिफरेंशिएशन होगा. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनना सारी पॉइंट्स बराबर से. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ interaction between disperse phase, that is solid, and dispersion medium, that is liquid. Okay, so depending upon this, there are two types of salts. One is called as lyophilic, lyophobic. Second is lyophobic salt. So we have lyophobic salt and we have a lyophilic salt. Now what is the meaning of philic? Philic means loving, you can say, a positive attraction. Phobic means some kind of hate, a negative interaction. So phobic matlab it doesn't like, okay, so we can say that disperse phase doesn't like dispersion medium, that is lyophobic and lyophilic. Okay, I'll give you a very simple example to understand this. Let us try to understand example of lyophilic salt. For example, you take a starch powder or a protein powder, you add into water, you stir it. So आजकल वो जो protein powder मिलता है ना, packed protein powder, okay, you take that protein powder, that is a solid, you take water, you start adding to it and stir it, you will get a slurry, a mixture, a heterogeneous mixture that you cannot see through it. The particle doesn't settle down, so it's not a suspension, it's not a true solution, it's a colloidal mixture. And how easily you can prepare it? See, you are adding just a solid into a liquid and just mixing it and you prepare it. So we can say okay, when protein powder or a starch powder is added to a water, it has a very good interaction with the water. Okay, तो क्या होता है जब दो चीज को आप ऐड करते हो और पार्टिकल साइज जो फर्स्ट सब्सटेंस का है, दैट इज डिस्पर्स फेज, उसका 1000 और 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए तो उसको हम लोग कोलॉइडल डिस्पर्शन बोलते हैं. सो व्हेन सपोज protein is a polymeric compound, when you add it to a water and you stir it, it will form a mixture, a heterogeneous mixture, and that is not a suspension, that is a colloidal dispersion with the particle size is between 1 to 1000 nanometer. But आपने बहुत easily बना दिया. इसका मतलब क्या है? There is a good interaction between, a positive interaction between the dispersed phase, that is a protein powder, and the liquid, that is water, that is dispersion medium. So can we say कि here the dispersed phase and dispersion medium are loving each other? Therefore, these type of salts are called as lyophilic salt. Simple, lyophilic salt. Okay. Now, second example. Suppose if I want to make a salt with silver in water or gold in water, that is silver salt or a gold salt, or arsenic sulfur in water or arsenic sulfide in water, metallic salt बनाना मुझे, बेसिकली मेटालिक सॉल्ट बनाना है. ये सिल्वर बोलिए मेटल है, उसको वाटर में डिसॉल्व करना है. तो अगर प्योर सिल्वर लेके मेटल में डालोगे तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज अ वेरी वीक इंटरेक्शन. सो आप क्या करोगे
you can use a Bredig arc method. And what is this method? इस मेथड में एक आइस बात लेना है, उसमें एक और एक कंटेनर होता है और 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड पे हाई पोटेंशियल अप्लाई करना है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी। ओके, और उस कंटेनर में आपने वाटर डाला है और सिल्वर नीचे पीसेस में रख दे। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क दैट सिल्वर विल वेपराइज इनटू इट्स एटम एंड बिकॉज ऑफ द वाटर इट विल कंडेंस। तो अब वो एटॉमिक साइज के अंदर आके एग्रीगेट होके एटम्स विल एग्रीगेट टू फॉर्म अ साइज of 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में and becomes a silver salt। मतलब it is a very difficult process basically to make a silver salt or to gold salt। मतलब सिल्वर और गोल्ड को आप वाटर में ऐड करो और 2 इलेक्ट्रोड डालो और 2 इलेक्ट्रोड पे हाई पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो देयर विल बी अ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक करंट डेवलप जिसकी वजह से सिल्वर या गोल्ड होगा वो पहले एटम फॉर्म में वेपराइज होने की कोशिश करेगा, बट बिकॉज यू केप्ट इट इन आइस बाथ इट विल कंडेंस एंड इट विल फॉर्म अ स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज एग्रीगेशन ऑफ सिल्वर एटम्स और गोल्ड एटम्स। और जब वो एग्रीगेट होते हैं सिल्वर एटम्स, बहुत सारे सिल्वर एटम एग्रीगेट हो गए तो एक बड़ा पार्टिकल बनेगा जिसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो एक कोलॉइडल डिस्पर्शन बन गया है and it is a sol because it is a solid in liquid, but to make this sol we require operative method where you require electricity, we require high electric current। और आप क्या कर सकते हो, 2 मैग्नेटिक प्लेट के बीच में आपने पीसेस रख दिए हैं सॉलिड मेटल के एंड यू जस्ट ग्राइंडेड एट वेरी हाई आरपीएम, वेरी हाई रेवोल्यूशन पर मिनट पे आपने उसको ग्राइंड किया और हाई प्रेशर डाला पानी से एंड यू मेक दैट सॉल्ट जिसमें गोल्ड और सिल्वर के डिस्पर्स फेज्ड पार्टिकल्स हो गए जिसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा। सो दैट टू मेक दिस सॉलिड इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इट। और अगर आप वाटर थोड़ा सा भी इवेपोरेट कर दोगे वो सब एग्रीगेट हो जाएंगे, मतलब साथ में आ जाएंगे सारे सिल्वर, जिसको बोलते हैं हम लोग कोऑगुलेशन, कोऑगुलेट हो जाएंगे और बॉटम पे बैठ जाएंगे। तो वाटर अलग हो जाएगा और सिल्वर पूरा अलग हो जाएगा। मतलब और फिर अगर आपको वापस बनाना है तो अगेन यू नीड टू सेंड सिल्वर टू अ सेम प्रोसेस। बट प्रोटीन इन वाटर सिंपल है। अगर वाटर इवेपोरेट भी हो गया तो प्रोटीन पाउडर बच जाएगा, उसमें फिर वाटर डाल के आप स्टर करोगे तो फिर से वो कंपाउंड बन जाएगा, फिर से वो स्लरी, वो फिर से वो डिस्पर्शन, कोलोइडल डिस्पर्शन बन जाएगा। सो बेसिकली प्रोटीन एंड वाटर हैज अ वेरी गुड इंटरैक्शन, ओके, बट गोल्ड इन वाटर हैज अ वेरी बैड इंटरैक्शन, दे डजंट लाइक ईच अदर। बट आप फोर्सफुली थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क मेथड या मैग्नेटिक प्लेट मेथड आप उसको फोर्सफुली कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करके कोलॉइडल डिस्पर्शन बना रहे हो। सो गोल्ड इन वाटर, सिल्वर इन वाटर, आर्सेनिक सल्फाइड इन वाटर, सल्फर इन वाटर, ये एक टाइप का लायोफोबिक सॉल्ट है जहां पर डिस्पर्स फेज जो आपके मेटल है उसको वाटर से कोई ज्यादा इंटरैक्शन नहीं है। और प्रोटीन पाउडर इन वाटर, स्टार्च इन वाटर, ग्लूकोज, ये सब एक एक लायोफिलिक salts है where there is a very good interaction, very loving interaction between the dispersed phase and the dispersion medium। okay, तो अब अगर लायोफोबिक बनाना है तो इट इज अ काइंड ऑफ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार आपने वाटर इवेपोरेट कर दिया सारा मेटल कोऑगुलेट होके बॉटम पे बैठ जाएगा, फिर आपको वापस पूरे प्रोसेस में इसको डालना पड़ेगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ इरिवर्सिबल, बट लायोफिलिक इज अ काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर वाटर इवेपोरेट भी हो गया तो अब वापस इसमें वाटर ऐड करके टू द प्रोटीन पाउडर यू मेक अ कोलॉइडल डिस्पर्शन अगेन। तो एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, नाउ next point इसमें you need to remember is about stability। Lyophilic is a stable in nature and lyophobic is not so stable। मतलब अगर इसमें मैं कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं, कोई सॉल्ट ऐड कर दूं तो वो सारे सिल्वर या गोल्ड ना कोगुलेट होके बैठ जाएंगे नीचे। the charges will be gone on them। So that is a problem to create a lyophobic salt। So let us now try to differentiate between lyophilic and lyophobic salt। I'll write it down, few points here। The first point is lyophilic salt form easily by direct mixing। okay, form, या मैं क्लियर करके यहाँ पर ही ले लेता हूँ। colloids phobic colloids, very good interaction between dispersed phase and dispersion medium। so dispersed phase और dispersion medium में strong attraction, strong interaction।
योर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में बहुत ही वीक इंटरैक्शन है. ओके, नाउ these lyophilic colloids can be formed easily by डायरेक्ट मिक्सिंग. जैसा मैंने आपको बताया था, स्टार्च को वाटर में डाल दो, इजीली मिक्स हो जाएगा. बट योर फॉर्म ओनली बाय स्पेशल मेथड, मतलब आपको ये बनाना है स्पेशल मेथड लगेंगे. जैसा मैंने बताया था अभी, ब्रेडिक आर्क मेथड और मैग्नेटिक प्लेट्स मेथड, यू रिक्वायर दैट. Now the particles are not easily visible under ultra microscope. The particles are easily, यहाँ पर particles को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते लायोफिलिक में, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन रहता है. तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, here the particles are not easily visible, okay, under microscope, ultra microscope. Okay, and here in this case particles are easily visible, मतलब you can detect them. Particles are easily detected under ultra microscope. Okay, now to coagulate this salt, अगर इस सॉल्ट को मुझे कोagulate करना है, तो मैं एक बात आपको बता दूं इधर पे, कि हम लोग कोई भी जो कोलॉइड्स प्रिपेयर करते हैं, तो वो कोलॉइड्स में क्या होता है, यू ऐड अ डिस्पर्स फेज इनटू डिस्पर्शन मीडियम. बट मैंने बताया था वो डिस्पर्स फेज जो होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं कोलॉइड्स में, ये कोलॉइड्स आपने बनाया, ये वाटर के अंदर समझो कोलॉइड्स बनाया, आपने स्टार्च पार्टिकल्स डाल दिए, तो ये स्टार्च के मॉलिक्यूल्स है जो घूमते ही रहेंगे इधर से उधर. सो ये स्टार्च के मॉलिक्यूल्स, सी इन वाटर, दे आर नॉट सेटलिंग डाउन, दे आर मूविंग हियर एंड देयर, बिकॉज इन सारे मॉलिक्यूल्स पे, चार्ज के मॉलिक्यूल्स हो या इन सारे पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है. इसके लिए कोलॉइड्स कभी भी साथ में नहीं आते. ओके, तो सपोज इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, देखो ये सब पे मैंने नेगेटिव चार्ज लिख दिया, तो दीज आर नथिंग बट नेगेटिव चार्ज ऑन द कोलॉइड्स. सो बिकॉज ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑन द कोलॉइड्स, दे डू नॉट कम टुगेदर, ऑब्वियसली दे विल रिपेल. ठीक है, और ये एक लायोफिलिक है, मतलब यहाँ पर इंटरैक्शन बिटवीन दिस डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इज वेरी स्ट्रॉन्ग. बट अगर मैं कोई ऐसा कोलॉइड ले रहा हूँ, अगेन मैंने इसको वाटर में ही बनाया है, बट इसके अंदर सपोज ये गोल्ड का कोलॉइड है, एंड सपोज गोल्ड का कोलॉइड पे सपोज पॉजिटिव, सपोज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन, इट्स अ मेटल कोलॉइड जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो अगेन ये साथ में नहीं आएंगे. बट देयर इज अ वेरी वीक इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. तो अगर मुझे इन सारे पार्टिकल्स को, चाहे वो लायोफिलिक हो या लायोफोबिक हो, अगर इनके ये पार्टिकल्स को, दीज पार्टिकल्स, अगर मुझे इन पार्टिकल्स को साथ में लेके आना है, कोऑगुलेट करना है, तो इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कोई इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा, वो इलेक्ट्रोलाइट पे जो ऐड करूंगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जाके जब नेगेटिव चार्ज कोलॉइड्स पे बैठेंगे तो उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे. सो न्यूट्रलाइज करने की वजह से ये सारे पार्टिकल्स साथ में आ जाएंगे और बॉटम पे बैठ जाएंगे, like a suspension, they will settle down. That is called as coagulation method. So electrolyte ऐड करने से आप कोलॉइड्स के पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करके उनको साथ में लेके आके कोऑगुलेट कर सकते हो. यहाँ पर भी आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा कौन से चार्ज के आयंस होने चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव कोलॉइड्स पे जाके बैठ जाएंगे, उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, और जैसे उनके चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए, सारे कोलॉइड साथ में आ गए और वो बॉटम पे बैठ गए, coagulate हो गए. But one is lyophilic where the colloid and the dispersion medium has a very strong interaction, and one is lyophobic where the colloids and the dispersion medium has very weak interaction. तो इनके लिए आपको जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा वो स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में ऐड करो, हो जाएगा. इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करोगे वो थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो कोलॉइड्स है इनका इंटरैक्शन डिस्पर्शन मीडियम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये जल्दी डिस्पर्शन मीडियम को छोड़ेंगे नहीं, अलग नहीं हो पाएंगे. दैट इज वाई here you need to add more electrolyte and here you need to add less electrolyte, so weak electrolyte basically जिसमें कम ions हो. So we can write down here
Okay, to precipitate, to coagulate. Precipitation is nothing but coagulation of the colloidal particle here. So we can write down here, okay, addition. You require add large amount of electrolyte, okay, to coagulate. Coagulate मतलब precipitate colloids. सो कोलॉइड्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए लार्ज इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। और मैंने आपको बताया कि कोलॉइडल पार्टिकल क्यों बॉटम पे सेटल नहीं होते, क्यों सेटल नहीं होते, बिकॉज उन पे चार्ज होता है और एक ही टाइप का चार्ज होता है। इसके लिए कोलॉइडल डिस्पर्शन नेगेटिव कोलॉइड हो सकता है या कोलॉइडल डिस्पर्शन पॉजिटिव कोलॉइड का हो सकता है। सो जो न्यूट्रलाइज्ड यू नीड टू ऐड इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन अगर वो लायोफिलिक है तो यू ऐड मोर इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो लायोफोबिक है तो यू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर कोगुलेशन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर ज्यादा चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विस्कोसिटी। आपको पता होगा विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर मैं हनी और वाटर में कंपेयर करूं तो हनी इज मोर विस्कस वी कैन से, क्योंकि उसका फ्लो कम है। तो विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो हनी के फ्लो में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसके लिए फ्लो कम है, स्पीड कम स्पीड से वो फ्लो करेगा। लेकिन वाटर का विस्कोसिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू हनी, तो वो फ्री फ्लोइंग है। जिसका विस्कोसिटी कम वो फ्री फ्लोइंग, जिसका विस्कोसिटी ज्यादा इट विल हैव अ रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो। ओके, उसका फ्लो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रहेगा, मूवमेंट स्लो रहेगा। दूसरी बात, जो विस्कस होते हैं जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है वो थिक मिक्सचर होते हैं, और जो जिनकी विस्कोसिटी कम होती है वो उनकी मिक्सचर की थिकनेस कम होती है। ओके, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं, अब वाटर लिया है, वाटर में आपने स्टार्च डाल के स्टर कर दिया। अब एक सोचो, एक बीकर में वाटर है और एक बीकर में स्टार्च इन वाटर, प्योर वाटर, स्टार्च इन वाटर, दोनों को अगर फ्लो करेंगे तो प्योर वाटर ज्यादा फ्लो होगा, स्टार्च इन वाटर थोड़ा स्लो जाएगा। मतलब स्टार्च इन वाटर का विस्कोसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्टार्च और वाटर का इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से वो बहुत गाढ़ा हो गया, थिक हो गया, तो इसके लिए उनका फ्लो थोड़ा रेसिस्ट हो जाएगा। इसके लिए वी कैन से इन लायोफिलिक सॉल्ट viscosity of salt is greater than डिस्पर्शन मीडियम। मतलब प्योर वाटर से, अगर आपका वाटर ही डिस्पर्शन मीडियम है और आपने स्टार्च ऐड कर दिया तो वो एक स्टार्च का सॉल बन गया है। तो स्टार्च का सॉल का जो फ्लो रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू प्योर वाटर। तो प्योर वाटर डिस्पर्शन मीडियम है, तो वी कैन से नाउ द स्टार्च हाइड्रोजोल, द स्टार्च एक्वाजोल will have more viscosity as compared to pure water, क्योंकि वहां पर starch और water का बहुत strong interaction है। And here in this case, interaction between the disperses and dispersion medium is extremely weak. तो इसके लिए we can say the viscosity of sol is same as dispersion medium। मतलब जो पानी का फ्लो रहेगा वही गोल्डन वाटर का फ्लो रहेगा, क्योंकि गोल्डन वाटर एक थिक पेस्ट नहीं बनाने वाला। ओके, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन की। आपको याद होगा सरफेस टेंशन क्या होता है मैंने एड्सॉर्प्शन में आपको बताया था कि व्हाई एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस। फिर से एक बार बता देता हूं, सरफेस टेंशन कब होता है? जब सरफेस के मॉलिक्यूल सिर्फ नीचे के मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो, उनसे ही अट्रैक्ट होते हैं, उनको ऊपर से कोई इंटरेक्शन नहीं मिलता। ओके, तो सरफेस टेंशन सरफेस पे डेवलप होता है, लाइक सरफेस टेंशन ऑन सरफेस ऑफ वाटर। बट अगर आप समझो उस वाटर में स्टार्च या प्रोटीन ऐड करते हो, so the interaction between the dispersed phase, that is the starch or protein added, and the dispersion medium is so strong कि वाटर जो सरफेस पे है अब नीचे वाले वाटर से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में स्टार्च के मॉलिक्यूल आ गए। तो स्टार्च के मॉलिक्यूल आने की वजह से जो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल है वो ऊपर सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा पुल नहीं कर रहे, क्योंकि अब इंटरेक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन, बिकॉज अब एक दूसरा मॉलिक्यूल आ गया जो उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज स्टार्च or protein or any kind of a lyophilic colloid. So that is why you say in the case of lyophilic colloid surface tension actually water पे कम हो जाता है, क्योंकि आपने कुछ दूसरा चीज मिक्स कर दिया। और सरफेस टेंशन कब होता है? जब वाटर के सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होते हैं, अनइक्वल डायरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे वो टेंशन में रहते हैं। ये मैंने आपको एड्सॉर्प्शन में सिखाया था कि the molecules which are present on the surface is only attracted by the molecules which are present below, due to which they experience an unbalanced force in the downward direction, and that causes them under a certain kind of a tension, and that is called a surface tension. But when suppose you mix starch to it,
Starch has a very good, starch molecule has a very good interaction. This is a starch molecule which has a very good interaction between water और वाटर. सो वो क्या करेगा, अब ये सारे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होने लगेगा, तो अभी इनके बीच में क्या आ जाएंगे, स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे जो अट्रैक्ट होने वाले, ठीक है, जो वाटर से खुद से अट्रैक्ट हो रहे हो. तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है, उनका इंटरैक्शन नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे कम हो जाएगा, बिकॉज अब नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्टार्च को अट्रैक्ट कर रहे हैं ज्यादा, तो इनको छोड़ देंगे सरफेस वाले को. अगर सरफेस वाले को छोड़ेंगे तो इन पे टेंशन कम हो जाएगा. तो दैट इज द रीजन द सरफेस टेंशन ऑफ दिस कोलॉइड इज लेसर देन द प्योर वाटर. तो प्योर वाटर में ज्यादा सरफेस टेंशन होगा और इनमें कम होगा. सो वी कैन राइट डाउन दैट सरफेस टेंशन ऑफ सॉल इज लेस देन डिस्पर्शन मीडियम. मतलब प्योर वाटर में अगर आपने बनाया है तो प्योर वाटर का जो सरफेस टेंशन होगा वो ज्यादा होगा, और जो अगर स्टार्च इन वाटर उसका सरफेस टेंशन कम होगा, क्योंकि अब सरफेस के जो वाटर है वो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है, क्योंकि नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल अब सिर्फ उनको पुल नहीं कर रहे हैं, वो स्टार्च के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं. दैट इज द रीजन. एंड हियर तो इंटरैक्शन तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पर जो सरफेस टेंशन इज मोर और लेस सेम एज डिस्पर्शन मीडियम. So guys, this was about lyophilic and लायोफोबिक सॉल. आप इसके एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको भी कितने सारे एग्जाम्पल्स बताए. द सॉल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इन वाटर, गम, एडिंग गम इन वाटर, और gelatin, or solution of starch in water, cellulose in acetate, rubber in benzene. रबर भी ऑर्गेनिक है, बेंजीन भी ऑर्गेनिक है, तो इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा उनका. सेल्यूलोस नाइट्रेट और सेल्यूलोस एसिटेट इन एसीटोन, ये सारे एग्जांपल्स है. लायोफोबिक हीटिंग, फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड gold salt in water. For example, salts of hydroxide like ferric hydroxide in water, and metal sulfides like As2S3, arsenic sulfide in water. ये सारे एग्जांपल्स लायोफोबिक है जिनको स्पेशल मेथड से बनाया जाता है. सो दिस वाज द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium. Okay, now okay guys, now let's move on to the classification of colloids. On the basis of number of molecules or atom together, number of molecules or atoms associated with each other के एसोसिएशन की वजह से. तो सबसे पहले इसमें the first type of colloid in this is called as multimolecular colloids. ठीक है, अब ये हम लोग जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अगेन सॉल का ही क्लासिफिकेशन है. कीप दिस इन माइंड, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड. लेकिन इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज मल्टीमोलिकुलर क्लोराइड. नाउ व्हाट इज मल्टीमोलिकुलर क्लोराइड? नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि मॉलिक्यूल्स are more in numbers, and they will aggregate and form a large particle, and the size of that particle falls between 1 to 1000 nanometer. That is why it is called as a colloidal dispersion. For example, making a gold salt. गोल्ड सॉल्ट में आप क्या कर रहे हो ब्रेडिक आर्क मेथड में, कि आपने एक कंटेनर में वाटर लिया है, 2 हाई इलेक्ट्रोड डाल रहे हो, वो पूरे कंटेनर को आइस बाथ में रखा है, नीचे अंदर वाटर है और गोल्ड है. ओके, सो ये आइस बात है, इसमें आपका कंटेनर है, these are nothing but the ice pieces of ice. So basically ice and salt का ये आइस बात, दिस इज दी आइस बात. ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स आपने अप्लाई किए, इसके अंदर वाटर ऐड किया है, और यहाँ पर क्या है, पीसेस ऑफ मेटल है. दीज आर द पीसेस ऑफ मेटल, गोल्ड. सो अब यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ हाई इलेक्ट्रिकल करंट, दिस गोल्ड एटम, दिस गोल्ड पीसेस ऑफ गोल्ड, पीसेस होते हैं वो ब्रेक होके एटम फॉर्म में आ जाते हैं,
और ये सारे एटम फॉर्म में, एटम फॉर्म में आ जाएंगे। एटम फॉर्म में आने के बाद सीधे स्टार्ट कंडेंसिंग। अच्छा, कंडेंस होते होते क्या होता है कि दे गेट एग्रीगेट टुगेदर, मतलब ये भी गोल्ड एटम्स इन आपस में एग्रीगेट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, एग्रीगेट होने की वजह से दे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू अ सर्टेन पर्टिकुलर साइज विच लाइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। मतलब अगर मैं एक इस पार्टिकल को देखूंगा तो ये एक पार्टिकल को अगर हम लोग जूम करेंगे तो ये जूम करके आपको ऐसा दिखेगा कि इसमें बहुत सारे गोल्ड के एटम्स है जो एक दूसरे के साथ में एसोसिएट हो गए हैं। इसके लिए ये पूरे एक लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं और इस पार्टिकल का जो साइज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। दैट इज द रीजन इसको हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बोलेंगे। ओके, सो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड इज बेसिकली एग्रीगेशंस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म अ लार्ज पार्टिकल्स। ये एग्रीगेशन के वजह से हो रहा है। लार्ज पार्टिकल में अब इसमें बहुत सारे एटम्स है मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना रहा है, साथ में आ गए सारे पार्टिकल्स। ओके, लाइक 10 to 12 स्टूडेंट्स टुगेदर साथ में आ गए एक दूसरे के क्लोज, तो ऊपर से देखूंगा कि बहुत बड़ा पार्टिकल दिखाई दे रहा है मेड अप ऑफ 10 to 12 स्टूडेंट्स। लाइक दैट इट इज नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल्स टुगेदर व्हिच इज कॉल्ड एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ओके, नाउ सेकंड जो टाइप का इसमें कोलॉइड्स आता है, आई विल क्लियर दिस अप। सेकेंड टाइप का जो कोलॉइड्स आएगा, दैट कोलॉइड इज कॉल्ड एज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, तो सेकेंड टाइप का जो कोलॉइड होता है दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। इसका मतलब क्या हो गया, मैक्रो का मतलब क्या हो गया कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, मतलब कोलॉइड्स जो रहेंगे वो एक ही मॉलिक्यूल होगा बट लार्ज मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर्स लाइक स्टार्च, प्रोटीन्स, ओके, सेलुलोस, सेलुलोस हो गया, एंजाइम्स हो गए, दे आल्सो अ मैक्रोमोलिक्यूल, जिलेटिन एक्सेट्रा। ठीक है, हम लोगों ने इसको अगर प्रिपेयर किया है, नाइलॉन, पॉलीथीन एक्सेट्रा, ये सब पॉलीमर्स होते हैं। मतलब समझो एक स्टार्च की बात करूं तो स्टार्च का एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ स्टार्च इज मेड अप ऑफ सपोज 300 to 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एसोसिएट करोगे तब जाके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा स्टार्च का। तो जब स्टार्च आप वाटर में ऐड करते हो तो आप बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐड करते हो वाटर के अंदर। तो ये एक ट्रू सोल्यूशन जैसा होना चाहिए बिकॉज दीज आर द सिंगल मॉलिक्यूल्स। बट क्या है ना, ये खुद जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने बड़े साइज में होते हैं कि इनकी साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाती है, वरना इनको तो ट्रू सोल्यूशन कहा जाए बिकॉज ये इजिली मिक्स हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, बॉटम पे सेटल नहीं होते। और ये सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स है, बट सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल इटसेल्फ हैज एज अ ग्रेटर साइज बिकॉज एक मॉलिक्यूल ही बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल या डिफरेंट ऐसे मोनोमर से एसोसिएट है, तब जाके एक सिंगल मॉलिक्यूल बन रहा है स्टार्च का। सो दैट इज द रीजन दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कोलोइडल डिस्पर्शन। वरना इनको तो थ्रू सोल्यूशन में होना चाहिए। प्लस मोस्ट ऑफ देम आर न्यूट्रल, दे डू नॉट माइग्रेट अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब चार्ज नहीं होता, बट वेरी फ्यू कैन माइग्रेट अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो दिस, एंड प्लस दे फॉर्म, मोस्टली दे फॉर्म लायोफिलिक कोलॉइड। Why? Because they have a very good interaction with the dispersion medium. अगर आपने वाटर में ऐड किया तो इट हैज अ वेरी गुड इंटरेक्शन बिटवीन देम। सो मोस्टली ये इस टाइप का कोलॉइड बनाते हैं। और थर्ड टाइप के जो कोलॉइड है ना वो एसोसिएटेड कोलॉइड्स है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स पढ़ने के लिए ना सबसे इजीली आप समझ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। अगर मैं सोप और डिटर्जेंट की बात करूंगा तो सोप और डिटर्जेंट क्या है, तो बेसिकली सोप और डिटर्जेंट आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। लेकिन ये कौन से, देखो अगर मैं बात करूं एसिड तो RCOH इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ यू पुट वन कार्बन हियर CH3COH एसिडिक एसिड, if you put a hydrogen here formic acid, C2H5 propionic acid, you increase the carbon atom, we have different type of acid, butyric acid, valeric acid, caproic acid, मतलब hexanoic acid, heptanoic acid, decanoic acid. Now soap is made up of fatty acid where R is greater than 10 carbon atom.
like palmitic acid, stearic acid, oleic acid, C15, C17, 15 कार्बन का चेन, 17 कार्बन का चेन, जो नेचुरल फैट्स और ऑयल्स में मिलता है, उसके अंदर आप NaOH ऐड करते हो और वो एस्टर फॉर्म में मिलता है। वो छोड़ दो वो बात को, बट रिमेंबर दैट वो एक ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में मिलता है, और जब उसमें आप NaOH ऐड करते हो तो यू विल गेट RCOONA सपोज। बेसिकली वो तो सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप डिफरेंट है, वो forget about that, that is soap preparation is different where you take a triglyceride of these fatty acids in natural form और उसको आप सॉल्ट में कन्वर्ट करते हो। तो बेसिकली सोप और डिटर्जेंट आर नथिंग बट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, मतलब ये जो होगा उसमें कार्बन ग्रेटर देन 10 कार्बन होना चाहिए, तो ये आपका फैटी एसिड है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि सोप क्या है, तो सोप इज नथिंग बट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, फैटी एसिड विद द कार्बन इज ग्रेटर देन 10 कार्बन एटम। नाउ तो अगर मैं एक सोप का मॉलिक्यूल भी ले लूं, सपोज इफ आई कंसिडर वन सोप मॉलिक्यूल या एक वन डिटर्जेंट मॉलिक्यूल ले लिया या सोप मॉलिक्यूल ले लिया जो स्टीयरिक एसिड से बना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सोप इस स्टीयरिक एसिड पे लिया, सोडियम स्टेरेट करके, C17H35COO माइनस and Na plus। सी दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड। तो ये एक सोडियम स्टेरेट है, इसमें कितने कार्बन एटम है? 17 कार्बन एटम। ठीक है, सोडियम स्टेरेट सोप 17 कार्बन का चेन होता है। तो अगर मैं किसी भी सोप की बात करूं, आई विल क्लियर दिस अप फर्स्ट, आई नीड स्पेस फॉर एसोसिएटेड कोलाइड। तो अगर मैं किसी भी सोप और डिटर्जेंट की बात कर रहा हूं, तो इट इज नथिंग बट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड where R is greater than 10 carbon atom. For example, if I write down sodium stearate, that is C17H35COO minus Na plus. This is an example of soap, sodium stearate, which is made up of stearic acid. ठीक है, और डिटर्जेंट का एक एग्जांपल देता हूँ, सोडियम लॉरल सल्फेट, दैट इज CH3CH2 11 टाइम SO4 माइनस Na प्लस, सोडियम लॉरेट डिटर्जेंट। LAU लॉरल सल्फेट, सोडियम लॉरल सल्फेट। So basically a detergent, so see what soap and detergents are, they have large number of carbon atom, greater than 10 carbon atom। तो अगर मैं किसी सोप को स्टडी करूं तो सोप के पास कार्बन चेन होता है बड़ा सा, और उसके साथ में अटैच होता है COO माइनस एंड Na प्लस। अगर आप पानी में डालोगे तो वो आयनाइज हो जाएगा, CO माइनस और Na प्लस फॉर्म। तो दिस इज द important part of the soap। तो see properly, this entire chain is a carbon chain, organic, and this part is a ionic part। if you remember, like dissolved like में organic part doesn't like water, तो मतलब ये जो part होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये पानी से प्यार नहीं करता, इंटरेक्शन नहीं करता। और ये जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब इट लाइक्स वाटर। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किसको पसंद करता है? इट लाइक ऑर्गेनिक मैटर, obviously because itself is organic। so ये organic matter को like करता है। okay, so it likes organic matter like oil, grease, etc। तो suppose आपने कंटेनर में ठीक है क्लॉथ ऐड किया है, उस क्लॉथ पे ऑयल का ड्रॉपलेट है, ठीक है, और उसको आपने पानी में डाल दिया। इसके अंदर आप सपोज ऐड कर रहे हो डिटर्जेंट और सोप आपने ऐड कर दिया अंदर। सो व्हेन यू ऐड इट एट अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, वो बात करेंगे वो क्या कॉन्सेंट्रेशन है, क्या होगा अंदर। व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड, you start stirring it for the mixing,
जैसे वॉशिंग मशीन में वो स्टर होता है, मिक्स होता है, तो होता क्या एक्चुअली, व्हाट हैपेंड बेसिकली, तो इसको थोड़ा सा जूमिंग करके देखते हैं बेसिकली। तो ये आपका क्लॉथ है, क्लॉथ इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम, इसके लिए इस पे ऑयल इजीली बैठ गया बिकॉज ऑयल आल्सो लाइक कार्बन एटम, तो इसके लिए स्टेन रह जाता है बिकॉज क्लॉथ इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑयल इज आल्सो अ कार्बन, ग्रीस इज कार्बन, सो बेसिकली वो क्लॉथ के ऊपर स्टेन रह जाता है, दैट इज ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो अब क्या किया आपने, पानी से तो निकल नहीं रहा था, यू एडेड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के पास में दो एंड होती है, सी प्रॉपर्ली, दिस इज योर ऑयल लविंग एंड एंड दिस इज वाटर लविंग एंड। तो अब ये डिटर्जेंट क्या करेगा, अपना जो ये एंड है ऑयल लविंग एंड, इसको ऑयल में डिसॉल्व कर देगा, सी बाहर तो पूरा पानी है। तो देखो ये डिटर्जेंट ने अपना ये जिगजैग वाला एंड जो है ना, ये अंदर डिसॉल्व किया, और बाहर कौन सा एंड बाकी है, माइनस, ये किस में ऐड, ये किस में अटैच्ड है, वाटर से, जो बाहर पानी है। देखो फिर यहाँ पर भी डिटर्जेंट आ गया, सी ये भी अपना टेल अंदर डाल के हेड बाहर रख रहा है, सी टेल अंदर डाल दिया इसने, हेड बाहर है, बिकॉज ये हेड किससे लाइक करता है, वाटर से, इट इज हाइड्रोफिलिक, और ये टेल किसको लाइक करता है, ऑयल को, बिकॉज इट इज हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक मैटर, सी अगेन माइनस माइनस COO minus COO minus COO minus. So see properly, these soap molecules or detergent molecule, they get associated at one place. This kind of association is called as micelles formation. ठीक है, इसको हम लोग मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं। मिसल फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ये सारे एसोसिएट हो रहे, एसोसिएट होके देखो एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे जिसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। तो अब ये एसोसिएशन का एक पूरा पार्टिकल बन गया, therefore these colloids are called as associated colloids, which is because of the association of the molecule at one point. Okay, और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, that is called as micelle formation. Have to remember that. This is basically the micelle formation taking place. Okay, अब ये चीज हमको याद रखना बहुत जरूरी है कि micelle formation take place only above a specific temperature. This micelle formation, I write down here, formation take place at certain temperature, specific temperature, above a specific temperature, जिसको हम लोग बोलते हैं, just for a factual remember, this is called as Kraft temperature. Okay, and a certain concentration, that concentration is called as critical micelle concentration, CMC. Note down this, critical micelle concentration. Okay, now soaps के लिए normally, सोप्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन, डिटर्जेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, अराउंड 10⁻⁴ से लेके 10⁻³ मोल पर लीटर, दैट इज द CMC वैल्यू। और अगर आपने इनको डिसोसिएट कर दिया, मतलब ये सारे अलग हो गए, अगर ये अलग हो गए बेसिकली, तो फिर से ये किस में हो जाएंगे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में घूमते रहेंगे अंदर वाटर के। सो बेसिकली अब ये दे आर रिवर्टिंग बैक टू द इंडिविजुअल आयंस, ये मतलब अपने अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सोचो वॉशिंग मशीन के अंदर व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल प्रेशर, these chains, see this chain, this is attached to oil, and this part COO minus is attached to water. So when the water is drained out, वाटर के साथ में ये पार्ट अटैच होगा, ये भी जाएगा, इसके साथ ये कार्बन चेन कोवैलेंटली बॉन्डेड है तो ये भी जाएगी, और इस चेन के साथ में कौन अटैच होगा, ऑयल, तो वो ऑयल को खींच लेगा अंदर से, इट विल पुल द ऑयल फ्रॉम इनसाइड एंड द क्लॉथ इज क्लीन्ड। ओके, तो याद रखने का, जो ये पोलर हेड है CO माइनस, ये वाटर में रहता है, जिसकी वजह से देखो पूरे एसोसिएटेड सारे कोलॉइड्स, अब सारे डिटर्जेंट जब एसोसिएट हो गए तो वो एक लार्ज कोलॉइड बना रहे हैं। तो अगर मैं इसको बराबर से देखूं तो ऐसा कुछ दिखेगा कि दिस इज नथिंग बट, सी व्हेन देयर एसोसिएशन इज वेरी क्लोज, देखो ये ऐसा दिखाई देंगे आपको, सी दिस इज एसोसिएशन। ये नेगेटिव पार्ट किसमें है, बाहर पानी के अंदर, और ये सब किसके अंदर डिप्ट है, ऑयल के अंदर। तो ये सेंटर में आपका ऑयल था जिसके अंदर ये अटैच्ड हो गए हैं, सी प्रॉपर्ली। तो अब देखो, आप बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन दे आर कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू अ लार्ज कोलॉइडल मॉलिक्यूल, जिसका चार्ज क्या है, कोलॉइडल मॉलिक्यूल का चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो दे फॉर्म अ नेगेटिव मिसल कोलॉइड्स,
and this is called as missile formation. और ये formation कब होगा? At a certain concentration which is called as CMC, critical missile concentration, जो मैंने अभी बताया कि for soap and detergent it is 10⁻⁴ to 10⁻3. So cleansing action of soap or detergent help us to understand what is associated colloids. Okay guys, so this was the classification on the basis of molecular aggregation. We have multi-molecular so guys, if you talk about the classification, so we studied the classification that colloids. First of all, what we studied today, we'll revise it, that we studied that mixture of two types. One is called as homogeneous mixture and second is called as heterogeneous mixture. In homogeneous mixture, it is a one phase system throughout with the colloidal, where the particle size is less than 1 nanometer, cannot be seen by naked eye or under ultra microscope, and these particles do not scatter light. They passes through the filter paper, animal membrane. The particle doesn't settle down, they are under continuous motion. Now you have a heterogeneous में एक system वो है जिसमें when you mix two things, the particle size is greater than 1000 nanometer, the particles settle down, that is called a suspension, which does not scatter light. These particles are so large they can be seen by the eye or definitely under microscope, and they cannot be passed through filter paper or a cell membrane. And one heterogeneous mixture where the particles does not settle down, scattered light, passes through filter paper but not through cell membrane, and the particle size lies between 1 to 1000 nanometer, that are called as colloids or colloidal dispersion. Colloidal dispersion is made up of two things: disperse phase, which is like solute, and dispersion medium, which is like solvent. And on the basis of disperse phase and dispersion medium, we can have 8 types of colloids. आपने example देखे थे: salt, solid, foam, solid foam, aerosol, gel, okay, emulsion. These are nothing but the colloids, and we are totally surrounded by colloids. बिना colloids के हम नहीं रह सकते. Path of light याद रखना, हमको colloid से दिखाई देता है. उसके बाद में हम लोग ने सॉल के बारे में स्टडी किया. सॉल इज नथिंग बट सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इज योर डिस्पर्स फेज एंड लिक्विड इज योर डिस्पर्शन मीडियम. उसमें हमने ये स्टडी किया कि सॉल को हम क्लासिफाई कैसा करते हैं. वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन, वेयर वी कैन हैव अ लायोफिलिक, लायोफोबिक सॉल. लायोफिलिक जिसका अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम इज मोर, which have greater viscosity, less surface tension, which can be easily prepared, which are reversible colloids. अच्छा, lyophobic doesn't like. अच्छा, lyophilic example: starch in water, protein in water, cellulose nitrate in acetone. That is an example of lyophilic. Lyophobic, very weak interaction, cannot be easily prepared, only by special method. जैसे Bredig arc method या metal plate method बताया था मैंने आपको. Third, it cannot be reverse, so it is irreversible, easily नहीं आप उसको बना सकते हैं. It can be coagulated easily. आपको याद होगा coagulation क्या होता है. Coagulation is nothing but the aggregation of the colloidal particles to and to precipitate at the bottom. और आपको याद होगा colloidal particle बैठते नहीं हैं, वो अपने medium में घूमते ही रहते. क्यों? क्योंकि उन पे चार्ज होते हैं and same चार्ज होते हैं. So either we can have a negative colloid, we can have a positive colloid, and we can have a neutral colloid. But negative or positive colloid पे charge होने की वजह से they do not settle down. Okay, they do not settle down क्योंकि वो रिपेल होते रहेंगे सेम चार्ज. अगर चार्ज को आपको कोऑगुलेट करना है, साथ पे लेना है, तो इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. फॉर दैट यू नीड टू ऐड इलेक्ट्रोलाइट. सो लायोफिलिक के लिए यू नीड टू ऐड more electrolyte, because there is a very strong interaction between the disperse phase and dispersion medium. But for a lyophobic, you need to add only small electrolyte of opposite charge. अगर negative colloid है तो positive वाला electrolyte डाल दो and will coagulate. And classification can also be, Sol का classification can also be done on the basis of the size. Multimolecular aggregation of the atoms to form large colloids. मैक्रोमोलिकुलर मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल बहुत बड़ी साइज का होगा, जो ट्रू सॉल्यूशन जैसा होना चाहिए, बट कोलॉइडल साइज की वजह से वो कोलॉइड में आ जाता है. एंड थर्ड, एसोसिएटेड कोलॉइड्स लाइक डिटर्जेंट एंड सोप. जब उनको पानी में डालते हैं तो बिकॉज ऑफ द क्लींजिंग एक्शन वो ऑयल, ग्रीस, इसके अंदर आके सारे मॉलिक्यूल्स अपने टेल के साथ जो ऑर्गेनिक एंड एसोसिएट होकर लार्ज कोलॉइड मॉलिक्यूल बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज मिसल फॉर्मेशन, व्हिच कैन ओनली टेक प्लेस अंडर अ सर्टेन कंसंट्रेशन कॉल्ड एज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन. उसमें वो फॉर्म हो जाते हैं, और अगर ये मिसल ब्रेक हो जाए तो वापस से वो अपने आयंस फॉर्म में चले जाएंगे, RCOO माइनस के फॉर्म में. सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ कोलॉइड्स. नेक्स्ट लेक्चर कोलॉइड्स के अंदर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स एंड कोऑगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में स्टडी करेंगे और थोड़ा इमल्शन का पार्ट देखेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय.